السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، اما بعد۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آج جمعے کے دن ہم سب کو مسجد میں آنے کی توفیق دی ہے۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بات میں آپ کے سامنے کہنے کے لیے آیا ہوں وہ صحیح طریقے سے مجھے بولنے کی، سمجھانے کی، پھر ہم سب کو کہنے سے، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دیکھو، آج میں آپ کے سامنے دو پیغمبروں کا واقعہ بیان کروں گا۔ دو پیغمبروں کا واقعہ۔ وہ دو پیغمبر کون تھے؟ ایک تھے حضرت ایوب علیہ السلام اور دوسرے حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یہ نسل میں ایوب علیہ السلام۔ اب ان کا بہت اہتمام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خوب مال اور دولت دیا۔ اللہ تعالیٰ بہت مال اور دولت دیا اللہ تعالیٰ۔ جنگلہ کھیتیاں تھی ان کے پاس، ایوب علیہ السلام کے پاس کھیتیاں، اور الگ سی تجارت بھی ہے، انہاں کا بزنس بھی ہے انہاں کا الگ سے۔ یہ سب بہت مال اور دولت والے ایوب علیہ السلام ہیں۔ ان کے بچے پورے 14 بچے، 7 لڑکے 7 لڑکیاں، پورے 14 بچے تھے ان کے پاس، حضرت ایوب علیہ السلام کے بچے۔ ایوب علیہ السلام اتنی مال اور دولت کے باوجود بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے۔ ہر وقت ہمیشہ اللہ کی ذکر میں رہتے تھے اور شکر کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا، اے اللہ تیرا شکر، اے اللہ تیرا لاکھوں کروڑوں شکر، اس میں میرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ پورا تیرا دیا ہوا رحمت ہے، تیری دی ہوئی نعمت ہے میرے پاس، یہ پورے وہ بولتے تھے۔ اب اتنا مالدار ہے، الگ سے تجارت ہے، مال اور دولت ہے، کھیتیاں ہے، یہ پورے ہیں ان کے پاس، حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس۔ ایک دفعہ اللہ کے پاس شیطان گیا، شیطان جا کو بولتا کہ ایوب علیہ السلام ہے، تیرا ذکر ہے، تیری عبادت ہے، اس لیے کرتے ہیں کہ تو نے ان کو بہت زیادہ مال اور دولت دیا، انہوں کو ہونے سے انہوں تیرا ذکر کرتے ہیں، وہ چنا کا نہیں ہے سو مال اور دولت پورا تو کھینچ لیا کرتے تو تیرا ذکر نہیں کرتے، تو بولتا شیطان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ امتحان لینا نہیں میرا ایوب ایسا نہیں بول کو بتانے کے واسطے اللہ تعالیٰ اچھا جا تو میں میرا ایوب سے امتحان لوں گا، تو بولتے اللہ، اور اللہ کو بھی معلوم یہ امتحان میں 100% ابراہیم علیہ السلام کیسا ہے تو ہے کہ ویسا چھے یا
अय्यूब अलैहिस्सलाम भी वैसा 100% कामयाब होते को बोल को अल्लाह को मालूम पहले से। अल्लाह तो आलिमुल गईब है। अब इम्तिहान लेने के वास्ते अल्लाह ताला क्या करे मालूम, इनके पास है सो पहले खेतिया है ना, जंगला, ये पूरे बर्बाद हो गए, ये पूरे बर्बाद हो गए। पहले नुकसान हो गया इनको, अय्यूब अलैहिस्सलाम को। उसके बाद माल और दौलत है ना, वो पूरा चला गया। और इनका तिजारत, इन्हों बिजनेसमैन ना, इना का बिजनेस, इना का तिजारत पूरा चला गया फिर। और इसके बाद इनके पूरे बच्चों को अल्लाह ताला उठा लिया, मौत दे डाला इनके पूरे बच्चों को, एक नहीं दो नहीं, पूरे 14 बच्चों को भी अल्लाह ताला मौत दे डाला। कितना मुसीबत है, एक बार सोचो तुम्हें, कितना मुसीबत है। एक नहीं दो नहीं, एक ही बार है। इधर खेतिया में बर्बाद होगी, खेती जंगला बर्बाद हो गए, माल और दौलत चला गया, बिजनेस तिजारत चला गया। अब बच्चे भी 14, एक दो बच्चे भी नहीं, कितना मुसीबत होती है। एक बच्चा गया तो भी वहां 14 बच्चे अय्यूब अलैहिस्सलाम के वफात पा गए, इंतकाल हो गए। 14 बच्चे एक ही बार में। एक रिवायत में आता है कि एक ही बार अल्लाह ताला 14 बच्चों को मौत दिया, और एक रिवायत में आता है कि अलग अलग से 14 बच्चे उठा लिया। 14 बच्चों को अपने आंखों के सामने अल्लाह ताला उठा लिया, मौत दे डाला 14 बच्चों को भी। एक एक छीन लेना शुरू करे अल्लाह ताला, इम्तिहान शुरू करे अय्यूब अलैहिस्सलाम का टेस्ट। पूरा खींच लेने के बाद अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक बड़ी बीमारी भी दे डाला। इसके साथ साथ इतना गम होकर रहता, सोचो एक बार, अपने बच्चे चले गए। अब सख्त बीमारी, कैसी बीमारी, आंख बदन के ऊपर फोड़े पड़ जाओ को, वो फोड़े में से पीप बाहर का था, सो खून भी पीपे, मेरे को चमड़ा ऊपर जाओ को, गोश्त आता ना, गोश्त का टुकड़ा दिखता सो। एक एक बार वो जिस्म का गोश्त निकल कर नीचे पड़ जाता सो। ऐसी बड़ी बीमारी दिया अय्यूब अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला, ऐसी बड़ी बीमारी। बदन पे पूरे फोड़े पड़ जाको, उसमें से खून पीपे, चमड़ा उखड़ जाको, अंदर का गोश्त दिखता सो, वो गोश्त के टुकड़े टुकड़े होकर बिल्कुल नीचे गिर जाते रहता सो। उन्होंने पैरालाइज्ड हो गए, खाट के ऊपर हो गया, अभी उन्हें चल सकते नहीं, फिर सकते नहीं, खड़ सकते नहीं, खाट के ऊपर पड़कर रहना चाहिए। ऐसी बीमारी दी अल्लाह ताला अय्यूब अलैहिस्सलाम को। और ऐसी बीमारी में भी अल्लाह की नाशुक्री नहीं करे अय्यूब अलैहिस्सलाम, हमेशा हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करे। और इतनी सख्त बीमारी की लोग इनाकू देखो, अय्यूब अलैहिस्सलाम से इससे पहले कितना प्यार और मोहब्बत करते थे कि लोग अय्यूब अलैहिस्सलाम से, वो लोग पूरे इनसे नफरत करते सो। ये बीमारी हमना भी लग जाती क्या की को बोल को, ये बीमारी एक दूसरे को लगने की बीमारी क्या की को बोल को समझ को, अय्यूब अलैहिस्सलाम से नफरत करते सो लोग। वो बीमारी हमना भी कहा लग जाती की को बोल को दूर चले जाते सो अजमें अय्यूब अलैहिस्सलाम से। अब उनकी बीवी, अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी बहुत दीनदार, देखो अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी आज के औरतों के लिए एक बड़ा मिसाल है। अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी, अब इतना कुछ होने के बाद भी लोग अभी तंग आ जाको, यहां से दूर चले जाते हैं। अम्मो वो बीमारी हमना लग जाती क्या की को बोल को, उतना सख्त बीमारी है अय्यूब अलैहिस्सलाम को। है तो भी बीवी उनको छोड़े नहीं, अय्यूब अलैहिस्सलाम को छोड़े नहीं, उतने सख्त हालत में भी सब भी छोड़ा ले तो भी बीवी छोड़े नहीं। निकाह गए तो वचना, खुशियों में नहीं गमों में भी उनका साथ देना, वही तो है निकाह। खुशियों में साथ दिए तो वो कैसा होता, वो वफा कैसा होता, वो बेवफा ही ना।
खुशियों में साथ देखो, गमों में छोड़ कर चल जाना। वो अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी खुशियों में भी साथ थी और गम में भी उनके साथ थी। आज हमें अपनी बीवियों को अगर हम दीनदार को नहीं लेकर आएंगे तो हमारा अंजाम बहुत बुरा होगा। अब यहाँ अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी दीनदार होने से माल और दौलत चल जाने के बावजूद भी अपने शोहर के पास ही रहे, अपनी शोहर को छोड़ को गए नहीं। लेकिन आज के बहुत सारे औरतें अब शोहर करने से माल और दौलत चल गया, कहते अब इसका नहीं खाना गई को, चलो चलेंगे, तलाक ले रहा चले जाना। क्यों ऐसा होता है? ये लोग दीनदार नहीं होने से वो लोग ऐसा करते हैं। वो दीनदार है तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी कैसा है तो सब्र करेगी, उनके साथ गमों में साथ रहेगी, वैसा साथ रहते सब। इसलिए हम दीनदार लड़की से निकाह करना बहुत बहुत जरूरी है। उन्होंने कितना वफा करके दिखाए, देखो अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी उनके साथ रहे पूरी जिंदगी, उनके साथ बीमारी में। अब एक पूरा इनकी खिदमत करते सो सब भी दूर है तो इना की बीवी अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी नजीक रखो, उना की बीमारी सी डरे नहीं सर का नजीक रखो, वो पोसते सो, वो थोड़ा को पोसते रहते सो, पोसते भी, साफ करते भी, अय्यूब अलैहिस्सलाम को पानी नहलाते भी, खिलाते भी, पिलाते भी रहते सो। एक दिन पूरा माल खत्म हो गया, जब क्या करे मालूम, अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी, अय्यूब अलैहिस्सलाम पूरा खाट के ऊपर हो गया ना, उठ सकते नहीं, खड़ सकते नहीं, क्या भी कर सकते नहीं ना, इतने सख्त बीमारी ना। ऐसी हालत में उनकी बीवी क्या करे मालूम, पूरा मालो दौलत खत्म हो गया तो खाने के वास्ते भी क्या भी नहीं, तो बाहर घरों में जाको काम कर आते सो। एक नबी की बीवी हो पूरी जिंदगी कैसा गुजारे, इससे पहले बीमारी से पहले पूरा खूब माल और दौलत में गुजारे उन्होंने। अबे क्या करते हैं, घरों में काम करने जाते हैं, घरों में काम कर ले का को वो पैसे से खाना पीना, अय्यूब अलैहिस्सलाम को खिलाना पिलाना, उनकी बीमारी के पास, उनकी बीमारी के वास्ते ढूंढना रहना हर वक्त, ना को शिफा किधर से मिलता, क्या मिलता को बोल को हर बारे लोगों से पूछना, मेरे बीवी मेरे शोहर को ऐसा ऐसा बीमारी आ गई, इसकी शिफा किसे तो मालूम क्या, इसका क्या तरीका होता है, शिफा आने के वास्ते क्या करना को बोल को बाहर घरों में काम करते सो। ऐसा हुआ कि लोग क्या करने लगे मालूम, लोग को अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी से, तेरा शोहर को है सो, तेरा मर्द को है सो बीमारी, तुझे लग जाता क्या कि तुझे लग को हमना लगता क्या कि को बोल को कहते सो लगा कहो उनको घर में काम में आने देते नहीं सो अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को। और बाद में लोग पूरे क्या करे मालूम, अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी, अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी ये लगा को लग जाता को बोल को जिला वतन कर डाले, कहते तो गांव से बाहर चला फेंक डाले, ले जाओ, तुम्हें गांव में रहने का काम नहीं, बाहर रहो, तुम्हारी बीमारी हमना लग जाती क्या की को बोल को। अय्यूब अलैहिस्सलाम के एक पैगंबर, एक नबी को वो लगा ऐसा करे, पूरे बाहर चले गए, बीवी शोहर अय्यूब अलैहिस्सलाम उनकी बीवी बाहर चले जाओ, एक छोटा सा लकड़ी का घर बना ले को, झोपड़ा बना ले को, उसमें रहते सब। इसी पहले कैसा घर में जाओ को अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी घरा घरा जाओ धोते भी, ये वो कामा करते भी, आपको पैसे कमा ले आते सो। लेकिन अब वो लगा भी घरा में काम आके वास्ते इनकार करवा ले, नहीं तेरा मर्द का बीमारी थी, लग को हम ना लगता क्या की को बोल को ये करवा ले। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी क्या करे मालूम, बाल अपना बाला काट को बाला बेचते सो अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी। ये वफादार बीवी होती, ये वफादार वाली दीनदार से हमें निकाह करे तो हमारा नतीजा यह होता। वो हमें दीनदार लड़की से नहीं निकाह करे तो कब है तो हमारे पास पैसा रहता कि जब तक हमारे साथ रहती, जब तक उसे हमें खुशी सी क्या होना गया तो ऐशो इशरत में गुजारती की रहती। कब है तो अल्लाह की तरफ से हमना इम्तिहान शुरू होता कि माल और दौलत चली जाता कि पैसा चले जाता कि फौरन छोड़ कर चली जाती, तलाक दे ले। इसे कहते बेवफा, इसे वफा नहीं बोलते, बेवफा ही बोलते इसे। दीनदार लड़की से अगर निकाह नहीं करे तो हमें हमारा नतीजा, हमारा अंजाम एनडीए होता हमारा। सारी जिंदगी उन्होंने अय्यूब अलैहिस्सलाम में बीमार हुए तो भी सब भी दूर चल जाते हैं तो की बीमारी की वजह से बीवी माने वफादारी के साथ उनके साथ ही है।
कितना माल और दौलत है पहले उन्होंने, वैसा घर में रहो भी उन्होंने, बाद में बीमारी के मौके को घरा घरा जाको काम कर लेगा सो। आज कौन ऐसा करते? ये फर्क है दीनदार में बेदीन में। दीनदार रहे तो हमारा घराना अच्छा रहता, हमारी जिंदगी अच्छी गुजरती, आजमाइशों में भी उन्होंने सब्र करते सो। अय्यूब अलैहिस्सलाम में पूरा सब्र करते सो। ये पूरी बीमारी में, ये बीमारी में छे अल्लाह की इबादत करते सो, नमाजा पढ़ते सो, छोड़ते नहीं सो। अल्लाह की इबादत है, सब्र करना, शुक्र करना अल्लाह की, हम्दो सना अल्लाह की करना, हम्दो सना करना, ऐसा करते सो अय्यूब अलैहिस्सलाम। अब या इन्हों बाहर से पूछते रहते सो अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी दूसरों से, किसे तो मालूम है तो बोलो हमारे मर्द को ऐसे ऐसा बीमारी आ गई, इसका शिफा किसे तो मालूम है तो बोलो, ट्रीटमेंट मालूम है तो वो करेंगे, वो बोलते रहते, अच्छा ये करते रहते, तलाश करते रहते, कौन तो दिखते क्या की, कौन तो मालूम होते क्या की गो बोल। अब क्या होता करते तो एक दिन शैतान इंसान की शक्ल में आता। या दो रिवायत है, एक रिवायत में है कि तलाश करते टाइम वो शैतान है इंसानी शक्ल में आ जाओ, इंसान के नाद आ जाओ, आदमी के नाद आ जाओ, शैतान है अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी के पास आको बोलता, तेरा मर्द का शिफा क्या होगी मुझे मालूम को बोल, मुझे आता, मैं शिफा करता हूँ, मैं बोलेनाथ करी तो उसकी बीमारी चल जाती है बोल। इन्हों क्या अच्छा इसमें है, इन्हों मेरे मर्द को कैसा मैं सीधा कर लेना, मेरे शोहर को कैसा बीमारी से बचा लेना बोल। अच्छा क्या होगी बोलो वक्त तो वो बोलता कि, वो शैतान बोलता कि बकरी है ना, बकरी मेरे नाम को काटना का था, अल्लाह का नाम लिए जानी, मेरा नाम को काटना। दूसरी बात मुझे एक सजदा करना को बोल, मेरे पास माल और जरूरत क्या भी नहीं है, तो वो को बोलते अय्यूब अलैहिस्सलाम की भी मैं चीजें देने भी मेरे घर क्या भी नहीं, तू ट्रीटमेंट करे तो भी वक्त तो तू क्या भी करने की जरूरत नहीं, एक बकरी ले ले को मेरे नाम पर काट दो, बकरी को एक सजदा मुझे करा आपको बोल को बोलता शैतान। इन लोग घर का को अपने शोहर से अय्यूब अलैहिस्सलाम से बोलते ऐसे ऐसा बात है, ऐसे ऐसा बात है को बोल को। अय्यूब अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ जाता, कहीं को अल्लाह के नाम के अलावा दूसरे नाम से कोई जानवर को भी काटे जा रहे मुसलमान है, वो हलाल नहीं, हमना अल्लाह के नाम से काटना हमें जानवर को, ये दूसरी बात है सजदा अल्लाह कुछ करना हमें किसे भी करे जानी सजदा। उन्होंने नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम हमारे नाथ मामूल इंसान भी नहीं आई, नबी उन्हें तो मालूम हो गया तू शैतान की बातों में कैसा आगे को बोल को गुस्सा आ जाता, गुस्सा आ जाएगा सजदा अल्लाह के सिवा किसे भी करे जाने को बोल को मान ली क्या, तो कैसा उसके बातों में आगे को बोल अल्लाह को गुस्से में कहते कि अगर मुझे शिफा देता है तो अल्लाह ताला 100 कोड़े मार दूंगा बोल को बोलते, कोड़े मालूम ना, कोड़े मार, वो कोड़े मार दूंगा कहते 100 कोड़े मार दूंगी मैं अल्लाह मुझे शिफा दिया तो वो बोल को बोलते। और एक रिवायत में आता है कि एक बार अय्यूब अलैहिस्सलाम के गांव को बीवी बोलते, बहुत साल हो गया तुम्हें अल्लाह से कई को दुआ करते नहीं है, मेरी बीमारी दूर कर अल्लाह को बोल को, कई को तुम्हें दुआ करते नहीं है, ये मुसीबत को दूर करो को बोल को, तो मैं कैसा दुआ करना को बोल को बोलती अय्यूब अलैहिस्सलाम, तुम्हें बोलो माल और दौलत में पूरा याशी में कितने साल रहे हमें को बोल को पूछते बीवी से, बोले तो बोलते नो 80 साल रहे को बोल को, 80 साल माल और दौलत में पूरा रिच मैन के नाम रहे नो जिंदगी गुजारे, बीमारी में अब कितने साल हुए बोलो को पूछते बीवी, 18 साल, कितने साल 18, माल और दौलत में कितने साल रहे 80 साल। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम बोलते कि मुझे शर्म आती है अल्लाह से मैं क्या मांगना, 80 साल में ही अय्याशी में गुजारो, बहुत माल और दौलत में गुजारो मैं, अब एक 18 साल में सब्र कर सकता नहीं क्या, अल्लाह मुझे इम्तिहान में डाला तो टेस्ट में डाला तो मैं सब्र कर सकता नहीं क्या, मैं सब्र करता हूं, कब तक का है तो पूरा 80 साल बीमारी के नहीं गुजरते कि जब तक मैं अल्लाह से सवाल करता नहीं मेरी बीमारी के बारे में को बोलते। कितनी बड़ी बात देखो, 80 साल में अयाशी में गुजारा हूं, अब 18 साल ही छुए सो, कब है तो ये 80 बराबर नहीं होते कि जब तक मैं अल्लाह से सवाल करता नहीं को बोलते, अल्लाह से मैं दुआ करता नहीं मेरी बीमारी दूर करो को बोलते। कितनी बड़ी बात ये, इतनी बड़ी बात बोले हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम है, 18 साल भी बात नहीं, वो बीमारी में रहना गए तो फोड़े आ जाओ, कोई फोड़े में सी पीप निकलता सो, खून निकलता सो, ये चमड़ा है ना बदन के ऊपर है, ये चमड़ा ऊपर जाओ को गोश्त दिखता सो, वो गोश्त भी एक बार टुकड़े हो जाओ नीचे गिर जाता सो, कितनी सख्त बीमारी, सोच तो कैसा गिरा था हमला। वैसी बीमारी में एक दिन 2 दिन नहीं, महीना 2 महीने नहीं, 18 साल गुजारे अय्यूब अलैहिस्सलाम में, सबर सी एक बार भी नाशुक्री नहीं करे, अल्लाह की ये मैच मिलों क्या मुझे दिया तू, मैच मिलों क्या को बोल कभी कहा भी ऐसा कहे नहीं। अब एक रिवायत में यह है कि अब इना की बीवी बोलते कि अभी कितने साल जी,
को बोल बोलते, ये जर्रा नाशुक्री के टाइप है, नाशुक्री भी नहीं लेके अल्फाज इस्तेमाल करना गलत इस्तेमाल हुए। इसके वजह से अय्यूब अलैहिस्सलाम को गुस्सा आकर अय्यूब अलैहिस्सलाम कहते कि मुझे अगर अल्लाह शिफा दिया तो मैं ये 100 कोड़े मार दूंगा बोल बोलते। ये दो रिवायत है, एक रिवायत में नहीं कि शैतान की वजह से और एक रिवायत में नहीं कि या ऐसा बोलने की वजह से। अब एक बार क्या होता, अय्यूब अलैहिस्सलाम में अल्लाह के बारगाह में दुआ करते, क्या को बोल के दुआ करते, अल्लाह मुझे एक मुसीबत छू ली, मुझे एक मुसीबत आ गया, तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला का। ये दो अल्फाज बोलते सो, ये दो वर्ड था जो बोलने का, मुझे एक मुसीबत आ गया, तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला को बोलते हैं अय्यूब अलैहिस्सलाम। अब जब ये दुआ करने के बाद अल्लाह ताला इनकी दुआ कबूल करता है, अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ। कैसा, अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म देता, जाओ को बोलो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको अय्यूब अलैहिस्सलाम से बोलते, तुम्हारा पांव में जमीन पे ऐसा मारे तो चश्मा उगड़ का आता, पानी का चश्मा, एक ही समय वाटरफॉल, पानी का चश्मा उगड़ रहा था, वो पानी से तुम्हें गुस्ल कर ले को, वो पानी पियो, पूरा शिफा हो जाता वो बोलते। अच्छा को बोलकर अय्यूब अलैहिस्सलाम ऐसा करते, मारे तो आ जाता, पूरा गुस्ल कर लेते, पानी पी लेते, इधर गुस्ल करे इस टाइम पहुंचे, पूरा बीमारी चले जाती अय्यूब अलैहिस्सलाम की। अय्यूब अलैहिस्सलाम की पूरी बीमारी चल जाती, इधर इना का प्यास बुझ जाता, पूरी बीमारी शिफा दे डालता अल्लाह ताला। या 18 साल सबर करे, नाशुक्री का भी करे नहीं अय्यूब अलैहिस्सलाम। अब सबर का नतीजा एंड क्या हुआ, सबर करने का नतीजा क्या हुआ, अच्छा हुआ, या बीमारी शिफा दे डाले, बीवी बाहर जाकर आते रहे, देख को अय्यूब अलैहिस्सलाम को बिल्कुल जवान कर डाले अल्लाह ताला, जवानी में बहुत सेहतमंद, इससे पहले कैसा कि वैसा सेहतमंद खूबसूरत बना डाला, बीमारी शिफा दे डाला। आप पूछते ना से अय्यूब अलैहिस्सलाम जी, ना मान ले अय्यूब को बोल, क्या मेरा शोहर रहना ना अय्यूब है नबी भी बीमार में पड़ जाओ है, उन्होंने देख के क्या करते, तो क्या तुम मुझे पहचान ही नहीं, क्या को बोलते अय्यूब अलैहिस्सलाम, तुम्हें कौन है को बोल बोले, तो मैं तेरा अय्यूब है, अल्लाह मुझे शिफा दे डाला को बोलते। जब वो उन्होंने भी अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी अल्लाह के शुक्रिया अदा करते। या हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कसम खाए ना, मुझे अल्लाह शिफा दिया तो मैं 100 कोड़े मार दूंगा। जब अल्लाह इसका हल बताया, इसका कफारा पावे उतना साले खिदमत करे, अब उन्हें 100 कोड़े मारना सही नहीं को बोल को अल्लाह खुद इसका सोल्यूशन बताया। क्या वो मालूम, 100 लकड़ा रहते देखे, को से झाड़ू के लकड़ा रहते देखे, हल्का सा रहते रहा, वो 100 जमा कर ले को एक ही बारे हल्का ऐसा मारो वो बोले, हल्का ऐसा टच, उससे कफारा अदा हो जाता वो बोले। देखो कितना बेहतरीन हल निकाला गया अल्लाह ताला। उधर एक कसम भी टूटे नहीं, 100 कोड़े मार तुमको बोले। अल्लाह क्या बोला, अपनी तरफ से हल बताया, वैसा नहीं झाड़ू के लकड़े हल्के रहते नहीं देखे, वो 100 जमा कर 100 भी एक एकदम हल्का ऐसा हल लगाओ को बोले, उसी कफारा अदा हो जाता तुम्हारा को बोले अल्लाह ताला। अब इससे क्या मालूम होता है, अगर हमने अल्लाह मुसीबत दिया करते तो उसमें हमें सबर का ऊपर को करे तो, अल्लाह की नाशुक्री नहीं करे तो हमारा एंड, हमारा नतीजा क्या निकलता, कभी अच्छा निकलता। हमने बिल्कुल अल्लाह ताला क्या करे मालूम, पूरा माल और दौलत बिल्कुल वापस दे डाला, बिल्कुल बच्चे दे डाला। कितने बच्चे दिया मालूम, 20 पर 8 बच्चे दिया, इससे पहले 14 बच्चे, अब 20 पर 8 बच्चे दिया बिल्कुल अय्यूब अलैहिस्सलाम को। बिल्कुल इससे पहले कितना है तो है कि पूरा माल और दौलत, उतना से ज्यादा दे डाला, उससे ज्यादा दिया अभी माल और दौलत। इन्होंने गुस्ल कर रहे थे इस टाइम को, टिटिया बोलते देखे, ग्रास होपर्स, टिटिया, वो टिटियों का सोने का टिटिया का बारिश फरमाया अल्लाह ताला। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम जल्दी वो टिटियों को जमा कर लेते सोने के टिटियों को, अय्यूब अलैहिस्सलाम से अल्लाह बोलता है, अय्यूब में ये माल और दौलत उतना दियो ना, तुम्हें कहीं को एक भी छोड़े नहीं, सरकार जमा कर लेते हैं बोल को पूछते अल्लाह ताला। है तो अय्यूब अलैहिस्सलाम बोलते कि अल्लाह तू तेरी रहमत से देता है, कोसा भी मैं छोड़ता नहीं, तेरी रहमत से तू कितना दिया तो मैं लेते छकूंगा बोल को बोलते हैं अय्यूब अलैहिस्सलाम। ये अय्यूब अलैहिस्सलाम का सबक है, सबर। और दूसरा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम एक ऐसी कौम की तरफ भेजे जिसका उस कौम का नाम क्या हुआ तो निनावा की कौम है। वो कौम में कितने लोग हैं तो तकरीबन 1,20,000 जन। यूनुस अलैहिस्सलाम नबी भी इधर रसूल भी, यूनुस अलैहिस्सलाम दीन की दावत देते रहे अपने लोगों को। वो लोग शिर्क करते सो, अल्लाह के साथ दूसरों को शिर्क करते सो, कुफर करते सो।
अल्लाह ताला इन्हों को भिजाया, दीन की दावत दी, इन्हों दीन की दावत देते रहते। लोग इससे पहले नबियों से कैसा तो इनकार करेगी, यूनुस अलैहिस्सलाम को भी ऐसा इनकार करवाते, नहीं मानते इन्हों की बातें, इनकार करवाते रहते। बिलाखिर इन्हों को धमकियां देते, हमें ये मरने मार वालते कि ये वो कर वालते, ये कर वालते को बोल को धमकाते अय्यूब अलैहिस्सलाम यूनुस अलैहिस्सलाम को। लोग इनके लोग जब यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह हुक्म देता, अब अभी ये लगा अजाब का भी मजाक उड़ाते, अजाब देता अल्लाह ताला तुम ना को बोल कर, तो अजाब का मजाक उड़ाते। जब अल्लाह ताला यूनुस अलैहिस्सलाम को बोलता फलाना टाइम को लगा को ऊपर है अजाब आ जाता वो बोल, वो लगा उसका भी मजाक उड़ाते। जब आपको यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बोलाते फलाना टाइम को तुम्हारे ऊपर अजाब आ जाता वो बोल को बोल जाओ, तो अब अभी ना मायूस हो जाओ, गुस्से में अभी मजाक उड़ाते हैं, लगा समझते नहीं है मेरे बात को, वो बोल को चले जाते वापस काकू बाहर चले जाते, एक समुद्र करने चले जाते। गुस्से में समुद्र से बाहर चले गए तो वह समुद्र के किनारे में एक शिप रहती, बड़ी शिप है, वो शिप में चले जाते, किस्ती में चढ़ जाओ लोगों के साथ चले जाते दूर। रास्ते में समुद्र के बीच में चले जाने के बाद एक तूफान आ जाता, एक बड़ा तूफान आ जाता। तूफान आ गया तो लोग बोलते कि भारी हो गया शिप पे, जरूरी नहीं सब सामान नीचे फेंक डालोगे, वैसा फेंक डालते है तो भी शिप पे कंट्रोल नहीं होता। जब बोलते कि लोग किसी के एक जगह किसमें फेंक डालना चाहिए पानी में को बोल को बोलते, जब क्या करते तो कुरानदाजी करते, चिट्टियां डालते, चिट्टिया कुरानदाजी लिखो नामा लिखो डालते। कब है तो डाले कि उसमें सबसे पहले नाम है कुरानदाजी में यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आता। लोग बोलते कि इन्हों तो नबी, इना के पिशानी को पर सजदे के निशानियां दिखते हैं, ये नेक आदमी को हमें समुद्र में कैसा छोड़ डालते, ज्यादा समुद्र में फेंक डालते, कैसा फेंक डालते जी वो बोलते। दूसरा बार फिर को डालेंगे वो बोल फिर को डालते, फिर को दूसरे बार भी यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आता, फिर को तीसरा बार डालते, तीसरा बार भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आता। ये दो रिवायत है, एक रिवायत में कि कबले तो 3 बार यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया कि जब भी यूनुस अलैहिस्सलाम को अपनी गलती मालूम होगी। या नबिया कभी गुनाह नहीं करते, नबिया गुनाह से पाक होते, लेकिन इससे मां ही गलती होती ना सी, छोटे छोटे गलतियां होते वो, या इना से गलती होगी, इना आपको फौरन मालूम हो गया। कबले तो 3 बार भी ना के नाम ही चाहे कि क्या वो गलती अल्लाह बोला नहीं तुम्हें चल जाओ को बोल को, अजाब आता है को बोल को बोला फलाना टाइम को लेके वैसे चल जाओ को बोल को बोला है। यूनुस अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया, ये लगा मजाक उड़ाते हैं, अजाब का फलाना टाइम को आ जाता है तो भी को बोल को गुस्सा आ जाओ, नाम मायूस हो गए। अभी ये लगा ईमान लाते नहीं को बोल को मायूस हो जाओ चले जाते, लेकिन अल्लाह हुक्म दिया नहीं तुम्हें चले जाओ छोड़ दो, वहां उन्होंने को रियलाइज हो गया वहां उन्होंने। अब क्या करते उन्होंने खुद समुद्र में डूब डालते। एक रिवायत में यह है। दूसरी रिवायत में यह है कि इना को कब है तो 3 बार डालते कि 3 बार बिना का नाम आता कि लोग कहते कि हबी इना को दाल डालना चाहिए नीचे को बोल को बोलते, लोग पकड़ को इना को समुद्र में फेंक डालते, समुद्र के बीच में। समुद्र में फेंकना भी कैसा, वेल बोलते, देखे वेल बड़ी मच्छी, इसमें कुरान में है तो अल्लाह ताला एक बड़ी मच्छी को बोल को जिक्र करा। मुफस्सिरीन क्या बोलेंगे तो एक वेल है जो एक एकदम इंसान को निकल जाती, चबलती नहीं, चापती नहीं, वो निगल डालती एक एकदम इंसान को, वो बड़ी मच्छी वो अल्लाह ताला कुरान में जिक्र करे, ऐसा को बोल को बोले, इसे वेल बोलते, वेल फिश बोलते हैं हमें। वो एक एकदम है इधर यूनुस अलैहिस्सलाम है खुद टेस्टम को वो मछली आ जाकर मुंह खोल डालती, वो मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम चले जाते, मछली के पेट के अंदर है यूनुस अलैहिस्सलाम चले जाते। या 3 अंधेरों में अल्लाह को पुकारते यूनुस अलैहिस्सलाम। 3 अंधेरे कौसे, एक है समुद्र का मछली का पेट का अंधेरा, एक है दूसरा समुद्र का अंधेरा, एक है तीसरा रात का अंधेरा, एक है। 3 अंधेरों में अल्लाह ताला को पुकारते। यूनुस अलैहिस्सलाम को मालूम हो जाता मैं गलती कर रहा हूं, अल्लाह बोले नहीं सका, मैं पीछे चले गया हूं, गुस्से से आगे उनको बोल को मालूम हो जाको क्या कहते मालूम, मछली के पेट के अंदर उन्होंने सही सलामत जिंदा रहते। वो वेल फिश में एसिड ज्यादा रहता, वो एसिड हमारे इंसान के पेट के अंदर है डाइजेस्टिव सिस्टम रहता ना, जो हमें क्या है तो खाए कि उसे हजम करने के वास्ते, वो एसिड से 10 गुना ज्यादा रहता, 100 गुना, 10 नहीं 100 गुना ज्यादा वो वेल फिश में रहता। तो क्या असली इंसान का चमड़ा भी बाकी रहता नहीं, वैसा के अंदर है, वैसा की मछली के पेट में अल्लाह ताला सही सलामत रखा, यूनुस अलैहिस्सलाम को जिंदा रखा अपनी कुदरत बताने के वास्ते। अल्लाह वो मछली को हुक्म दिया यूनुस को खा लेना नहीं, तू यूनुस को क्या मुसीबत भी पहुंचाना नहीं को बोल को हुक्म दिया। वो 3 अंधेरों में पुकारे अल्लाह को, अपनी गलती का एहसास हो जा को पुकारे, क्या को बोल को पुकारे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसका मतलब क्या,
अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह का जात है, पाक है, अल्लाह की जात पाक है। मैं जालिम है, मैं मेरे ऊपर मैं जुल्म कर लूं, मैं जालिम को बोल को ये दुआ बारे बार रिपीटेड होने पड़ते रहते, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन को। या हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़े ना, अल्लाह ताला बोलता है अगर यूनुस अलैहिस्सलाम में एक कौल को नहीं करे गए तो, ऐसा कौल को नहीं पढ़े गए तो ये दुआ कयामत तक मछली के पेट में रहते को बोल को बोले अल्लाह ताला। कयामत तक उन्हें करने की वजह से, ये दुआ पढ़ने की वजह से, ये अल्फाज बोलने की वजह से अल्लाह ताला ने मछली से बाहर निकाला, उनकी तौबा कबूल फरमाया। ऐसा मछली के पेट में 3 रिवायत है, कितने दिन रह सकते, तो एक रिवायत में है कि 3 दिन है, एक रिवायत में है कि 7 दिन है, और एक रिवायत में है कि 40 दिन मछली के पेट में सही सलामत रहे, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उन्हें बार आज तक भी अपनी जबान से ये बात बोलते रहे, या अल्लाह तू पाक है, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तेरी जात पाक है, मैं जालिम है, मेरे ऊपर मैं जुल्म कर लूं, मैं जालिम को बोल को बार बार ये दुआ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ये रिपीटेड होने बोलते हैं। अब बिना आखिर कभी तो वक्त आया कि अल्लाह फैसला कर लेता, अभी ना मछली के पेट से बाहर डाल डाला होगा, मछली को हुक्म देता ले जाओ अभी उसको बाहर डाल डाल मछली में, मछली के पेट में सही सलामत रखा। ये अल्लाह की बड़ी कुदरत है, ये बड़ा मौजूदा अल्लाह का, यूनुस अलैहिस्सलाम का एक बड़ा मौजूदा, सही सलामत जिंदा रखा। लेकिन ये नामुमकिन दुनिया में ऐसा जिंदा रहना, लेकिन जिंदा रख को बताया अल्लाह, हर चीज पर कादिर को बोल को बता डाला। अब मच्छी एक किनारे में जाको और यूनुस अलैहिस्सलाम को निकाल को बाहर फेंक डाली, तो किनारे का ने उन्हों के बहुत बार अंदर ही थे ना, पेट के अंदर उनको जरा बीमारी आ जाती, बीमारी आ जाको बहुत सेहत उनका चले जाता, बीमारी आ जाको बहुत कमजोर हो जाते, उन्होंने उठ सकते नहीं, बैठ सकते नहीं, खाली ऐसा लेट को रह जाना चाहिए। मछली कैसा होता है छोड़ डाली की वैसा रहना चाहिए। जब अल्लाह ताला क्या करे मालूम, वह एक दरख्त उगाया, कुरान में अल्लाह ताला बोलता है वहां ने एक दरख्त पैदा करे, वो दरख्त मुफस्सिरीन क्या बोलते हैं तो कद्दू का दरख्त उगाया अल्लाह ताला। वह कई को उगाने का वजह भी बोले मुफस्सिरीन, कद्दू के दरख्त लंबे रहते उसके पत्ते, जिससे धूप नहीं पड़ती, छाम रहता इधर यूनुस अलैहिस्सलाम को। दूसरी बात है वो कद्दू के पत्तों में खुशबू रहती, वो खुशबू की वजह से कीड़े क्या भी आते नहीं, नजीक को बीमारियां क्या भी आते नहीं उसकी वजह से। तीसरा वजह कद्दुआ है ना, वो कद्दुआ लटकते रहते ना नीचे को, कद्दू आने के बाद कद्दुआ लटकते रहते ना, इन्हों क्या उठ सकते नहीं, इना के मुंह करे कुछ लटक पाते सो कद्दुआ, वो कद्दू खा लेते सो। कद्दू में भी अल्लाह ताला बहुत शिफा रखा, वो कद्दुआ खा लेते सो। यूनुस अलैहिस्सलाम इन्हें उठ सकते नहीं ना, डायरेक्ट वो आपको या मुंह करने का आ जाता सो, लटकते भी हो, वो कद्दुआ खा लेते सो। जिनको पीना कैसा खाना पीना, इधर खाने का ये इंतजाम है, ये बकरी रहती, वो बकरी आपको करेक्ट ना के मुंह करने का आपको बकरी खड़ी जाको पावा दूर करको अपनी थन में से दूध छोड़ डालती। यूनुस अलैहिस्सलाम वो दूध वैसा पी लेते सो, पेट भर दूध पी लेते सो। ऐसा कब तक रहा, कब तक आए तो उसका सेहत आया नहीं कि दोबारा आया नहीं कि बीमारी का तो नहीं चल गई कि जब तक का ये मामूल होते रहे, उधर वो कद्दुआ खाना, इधर बकरी आपको दूध पिलाना यूनुस अलैहिस्सलाम को। अब कब है तो इधर वापस हो जाते कि अल्लाह ताला दोबारा वापस उधर भेजा डालता। अब वहां उधर, अब यहाँ यूनुस अलैहिस्सलाम को छोड़ो, उधर उनकी कौम का क्या हुआ कि देखेंगे। यूनुस अलैहिस्सलाम टाइम बोलते ना, फलाना टाइम को तुम्हारे ऊपर अजाब आता होगा, वो टाइम आ जाता, वो अजाब भी शुरू हो गया लगा ऊपर। क्या वो अजाब है, बादला दिन के उजाले में, दिन में पूरा रात के ना दे बादला पूरे काले हो जाकर रहती, उससे लगा को मालूम हो गया यूनुस बोले सो सच्चा नबी इन्हें अल्लाह का नबी भाई ने इन बोले सो अजाब आ गया। आप देखे तो यूनुस भी हमारे दरमियान नहीं है, कई को नबी वहां दरमियान है तो अजाब आता नहीं, अल्लाह खुद बोलता कहा है तो अजाब आता कि वो अजाब को देखने का इजाजत किसी भी नहीं है को, पैगंबरों को भी ईमान वाले को भी वो अजाब से भगा डालता, तुम्हें चले जाओगे बोल को। यूनुस अलैहिस्सलाम भी नहीं है, अब अजाब आ गया, हम कौन भी बचा सकता नहीं बोल को पूरे लोग को मालूम हो जाता, लोग पूरे एक जगह जमा हो जाको, किसके वो अलग हो जाते, बाप बेटा अलग हो जाते, माँ बेटी अलग हो जाते, सबके सब अलग अलग हो जाको, सजदे में पड़ जाको, अल्लाह से तौबा करते, अल्लाह हमें तौबा करते हैं, अभी कभी तेरे साथ दूसरे को शरीक नहीं करते, हमें तेरे साथ है, हमें तेरी ही इबादत करते, अब तेरे ऊपर हमें ईमान लाए अल्लाह, हमारी ये तौबा कबूल फरमा, हमारा ये अज़ब हमारे से हटाने को बोल के लगा दुआ करते रहते, बहुत बार दुआ कर लेते रहते हैं लगा, पूरे पूरे एक जनों दो जनों भी नहीं, पूरी कौम दुआ कर लेते। अब ये तौबा कर लेने के बाद अल्लाह क्या फरमाता, ये लगा कि तौबा कबूल फरमा डाल को क्या है तो अजाब लेकर आया कि वो अजाब को टला डालता,
वैसा पूरी कौमें ईमान ला डालती। का भी कौन से नबी की उम्मत भी पूरे के पूरे कौमें ईमान लाई नहीं, सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम वाहिद कौम है, पूरी कौम ईमान ला डाली। जर्रा आजाब देख लेने से जब पूरी कौम, इसमें एक जना भी ईमान लाने से बचा नहीं, कौन भी, हर एक जनों भी ईमान लाए। कितने जनों? पूरे 1 लाख, तकरीबन 1,20,000 जनों उनकी कौम है, निनावा की कौम है। ये पूरी कौम ही के यूनुस अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान ला है। अब यूनुस अलैहिस्सलाम ईमान लाए से इनाक मान लेना, यूनुस अलैहिस्सलाम को दोबारा अल्लाह ताला वापस भेजा डालता। अब इसमें क्या सबक है? यूनुस अलैहिस्सलाम में सबर करे, मछली के पेट के अंदर सबर करे और अल्लाह की इबादत भी करे। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये भी इबादत नहीं, इतना अल्लाह की पाक जात की सिफत बयान करे, जिनको खुद को मलामत देते रहे, मैं जालिम है, तू गलत नहीं हो सकता मेरे साथ है, मैं गलती कर होने से मेरे साथ ये होता है, तू गलती नहीं, अल्लाह को बोले, खुद को मलामत देते रहे यूनुस अलैहिस्सलाम। सबर है या इना के साथ में सो। बाद में तौबा, यूनुस अलैहिस्सलाम का एक तरफ से तौबा, अल्लाह मैं फिर को दोबारा ऐसा करता नहीं को बोल को, वह कौम भी तौबा करे तो क्या हुआ? अल्लाह ताला अजाब को टला डाला, इलाका को ऊपर है अजाब को। वहां अय्यूब अलैहिस्सलाम करे भी सबर है, कितने साल है? 18 साल बीमारी में रहे। बिल्कुल क्या कहे, मैं अल्लाह के साथ कैसे दुआ करना, 80 साल में ये माल और दौलत में याशी में दिया अल्लाह ताला, 18 साल में सबर कर सकते नहीं क्या? कब तक है? तो 80 बराबर होते नहीं कि जब तक मैं अल्लाह से दुआ करता नहीं कर बोलते। तो पूरा 18 साल भी सबर से काम लेते, अल्लाह की नाशुक्री नहीं करते अपनी जबान से, मुझे कहीं ऐसा दिया को बोल को। यूनुस अलैहिस्सलाम भी मैं ऐसा करना क्या, मुझे ऐसा करना क्या करते हैं, मैं तेरे तरफ लोगों को दीन की दावत देता रहा, मैं नबी मेरे साथ ही जैसा होना था। वो लगा पूरे ये नहीं माने, वो लगा को कहीं दिया नहीं अज़ब को बोल को, क्या भी ऐसा, क्या भी नहीं, अपनी गलती का एहसास कर ले को तौबा कर ले। अब या हमना भी होचे, हमना भी अल्लाह ताला मुसीबत देता, तकलीफा देता, तो आजमाइश करता हमना, हमारी आजमाइश, लेकिन वो आजमाइश में हमें पूरे ऊपर को सबर से काम लेना, अपनी जबान से नाशुक्री नहीं करना। जब हमारा नतीजा देखो, अय्यूब अलैहिस्सलाम का, यूनुस अलैहिस्सलाम का नतीजा देखो, आखिरी एंड क्या हुआ? इना का नतीजा अच्छा हुआ, तौबा करे, सबर करे, हमारे साथ है, हमें भी हमारी क्या है तो मुसीबत परेशानियां रहती की, उसमें हमें सबर करे तो हमारा नतीजा, हमारा एंड कब भी अच्छा होगा। अपनी जबान से हमने नाशुक्री नहीं करे तो हर हाल में शुक्र करना। अय्यूब अलैहिस्सलाम है, माल और दौलत में भी शुक्र करे, बीमारी के मौके पे भी शुक्र करे अल्लाह ताला की। या यूनुस अलैहिस्सलाम में तौबा करे, यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम में तौबा करे तो अज़ाब को हटा डाले। आज हमें भी हमारी गलतियों को इकरार कर ले को, गुनाहों का इकरार कर को अल्लाह के सामने, आज हमें भी तौबा कर ले तो अल्लाह ताला हमारे गुनाह भी माफ करने के लिए तैयार है, हमारी तौबा कबूल करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें तैयार नहीं है अल्लाह के सामने माफी मांगने के वास्ते। हदीस में आता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा अल्लाह से माफी मांग को थक सकता है, तो क्या माफी मांग को थक जाता ही नहीं इंसान है, लेकिन अल्लाह माफ कर को कभी थकता नहीं को बोले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी बड़ी बात है, ईमान वाले को, सोचने वाले की बहुत बड़ी बात है। हमें थक जाते अपनी माफी मांग को, लेकिन अल्लाह माफ करते करते भी कभी थकता नहीं होने से हमें अपनी गुनाहों का इकरार करके अल्लाह से माफी मांग लेना। इंसान है गलती का पुतला, हमारी सी गलतियां होते, लेकिन फौरन हमें उन गलतियों को सीधा कर लेना। कभी तो हम मान लिया कि जब अल्लाह के दरबार में आको, सजदे में चले जाको, अल्लाह की इबादत करको, हमें तौबा कर लेना, सबर से काम लेना, जब हमारा एंड, हमारा नतीजा कभी अच्छा होता। ये पूरा यूनुस अलैहिस्सलाम और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि जो बात मैं आपके सामने लेकर आया हूं, इसमें अगर कोई गलतियां हो गई तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि इन गलतियों को माफ फरमाए, और कहने से सुनने से ज्यादा हम सबको इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।